नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। Students, today we will discuss on session topic named Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution Importance. First in English medium students and then second Hindi medium. Let's see in English. The directive principles of state policy contained in Part 4th, Article 36 to 51 of the Indian Constitution constitute the most interesting and enacting part of the Constitution. Part 4, Article 36-51 of the Indian Constitution is very important part. Constitutes the directive principles of state policy which contain the broad directives or guidelines to be followed by the state while established politicians and laws. Policies and laws. The legislative and executive powers of the state are to be exercised under the previous review of the directive principles of the Indian Constitution. The Indian Constitution was written immediately after Indian obtained freedom, and the contributors to the Constitution were well aware of the ruined state of the Indian economy as well as the fragile state of the nation's unity. Thus, they created as a set of guidelines under the heading directive principles for an inclusive development of the society. Inspired by the Constitution of Ireland, the directive principles contain the very basic philosophy of the Constitution of India, and that is the overall development of the nation through guidelines related to social justice, economic welfare, foreign policy, and legal and administrative matters. The directive principles are codified various of democratic socialist order as conceived by Nehru with an admixture of Gandhian thought. However, the directive principles cannot be enforced in a court of law, and the state cannot be used for non-complaints of the same. This indeed makes the directive principles a very interesting and enacting part of the Constitution, because while it does stand for the ideas of the nations, these ideals have not been made mandatory. Implementation of the directive principles, as mentioned earlier, unlike the fundamental rights which are guaranteed by the Constitution of India, the directive principles do not have a legal sanction and cannot be enforced in a court of law. However, the state is making every effort to implement the directive principles in as many sectors as possible. The
Noteworthy implementation is the 86th Constitutional Amendment of 2002, which introduced a new Article 21A, making free education for children below the age of 14 compulsory. Prevention of Prostitutes Act, safeguarding the interests of SC and ST. Several Land Reform Acts, Minimum Wage Act 1948 are a few other examples of the implementation of the directive principles. Let's see in हिंदी. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक सेशन उसका नाम है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निषेध सिद्धांत, जिसमें महत्व पर बात करेंगे। भाग 4 में निहित राज्य नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में संविधान का सबसे एक दिलचस्प और विशेष करामाती भाग है। निर्देशक सिद्धांत का जो महत्व है उसको अपन देखते हैं। भाग 4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है, जिसमें नीति और कानूनों की स्थापना करते समय राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले व्यापक निर्देश या दिशा निर्देश शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के दायरे में राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय संविधान लिखा गया और संविधान के योगदानकर्ताओं को भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी की स्थिति के साथ साथ देश की एकता की नाजुक स्थिति के बारे में अच्छी तरीके से पता था। इस प्रकार उन्होंने समाज के समावेशी विकास के लिए प्रमुख सिद्धांतों के तहत दिशा निर्देशों का एक समूह बनाया। ठीक है, तो जो नाजुक स्थिति थी वो नहीं रहे, दूर हो जाए, उसके लिए कहीं न कहीं ये तत्व बनाए गए। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित निर्देशक सिद्धांतों में भारत के संविधान के बहुत बुनियादी दर्शन शामिल हैं और सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, विदेश नीति और कानूनी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित दिशा निर्देशों के माध्यम से राष्ट्र का समग्र विकास है। निर्देशक सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवादी आदेश के संहिताबद्ध संस्करण है, जैसा कि नेहरू द्वारा गांधीवादी विचार के एक मिश्रण के रूप में माना गया। हालांकि निर्देशक सिद्धांतों को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता और राज्य को उसी के गैर अनुपालन के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। निर्देशक सिद्धांतों को संविधान का एक बहुत ही रोचक और करामाती हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि यह राष्ट्र के आदर्शों के लिए खड़ा है, लेकिन इन आदर्शों को अनिवार्य नहीं बनाया गया। सिद्धांतों को क्रियान्वयन की बात करते हैं। भारत के संविधान द्वारा गारंटी दिए गए मौलिक अधिकारों के विपरीत निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं है और कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। मीन्स कानून या अदालत के द्वारा इसे फोर्स नहीं किया जा सकता, जैसे कि अपन मूल अधिकार के लिए करते हैं। हालांकि राज्य निर्देशात्मक सिद्धांतों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। 2002 का 86वां संवैधानिक संशोधन है 86, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हुए एक नया लेख अनुच्छेद 21A डाला गया है। अत्याचार निवारक अधिनियम, SC ST के हितों की रक्षा, कई भूमि सुधार अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के कुछ प्रमुख उदाहरण बने हुए हैं। तो आज आपने जो सेशन देखा है वो कहीं ना कहीं ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के डिजिटल वर्जन 2.0 के द्वारा तैयार किया गया है और ये जो सेशन है वो BA BEd और BEd इनके जो सेशन हैं इनमें से कुछ को कवर करता है, क्योंकि उनमें भी ये नीतिनिर्देशक तत्व पढ़ाए जाते हैं और इसके अलावा भी कहीं अलग दूसरे प्रोग्रामों में भी इसको पढ़ाया जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।